कि इससे पूर्व भी इसरो ने 2008 में एक साथ 10 और 22 जून 2016 में एक साथ 20 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि एक अभियान में सबसे अधिक 37 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का विश्व कीर्तिमान रूस के नाम है, जब उसने 2014 में इन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया था और 2013 में अमेरिका ने 29 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था। इस समय लगभग 3 मिनट की दूरी। Just about 3 minutes to launch, and it's time to briefly tell you the flight sequence which this vehicle will follow. At liftoff, along with the solid core, 4 of the 6 strap-ons will be ignited. Then, 25 seconds into the flight, the remaining 2 strap-ons will be ignited. The first set of 4 strap-ons which were ignited on ground will separate at 70 seconds and the remaining 2 at 92 seconds into the flight. The first stage will take the vehicle to a height of about 67 kilometers and will impart a velocity of 2.17 kilometers. You can see a full shot now on screen, our specialists looking very intently and monitoring the launch. The heat shield separation will then take place at an altitude of 117 kilometers when the protection of the heat shield is not required. You can see a very close view of the nozzle end of the first stage, where on the pedestal you can see the cutouts for the jet deflectors to operate. And counting. And this view also tells you now a view of the control center. Again, very intently, the launch is being monitored here. The second stage will go up to an altitude of 219 kilometers, and the flight time by now will be 263 seconds. The third stage will then separate at 492 seconds at an altitude of 428 kilometers. Finally, the fourth stage will ignite at 502 seconds and will cut off at 1008 seconds from liftoff when the initial orbital velocity of 7.6 kilometers is achieved. At this stage, the orbit of 505 kilometers circular has been achieved. The Cartosat 2 series satellite is next injected into the orbit and followed by INS satellites. All stations Subsequently, the nanos will be ejected. जी हाँ, प्रमोशन में कुछ ही घड़ियां शेष। अभियान नियंत्रण केंद्र में समय जो है वो 9:27 दिखा रहा है, माने हम केवल 50 सेकंड की दूरी पर। अभियान नियंत्रण केंद्र तथा प्रक्षेपण नियंत्रण में सभी विशेषज्ञ उड़ान संबंधी विभिन्न प्रचलनों का बड़ी बारीकी से सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हुए मैं अब खामोशी ग्रहण करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा ये गंभीर आवाज जो प्रक्षेपण तक आपके साथ रहेगी। -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. Roger. -25 seconds. PS2 VSPPs are opened. -20 seconds. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3, 4, 5, 6 of normal, 7, 8, 9, plus 10 seconds. A perfect liftoff as usual for PSLV, and you can see in all glory PSLV negotiating the dense atmosphere, all the strap-ons firing well. First stage performance लगातार हमसे दूर जाता +25 seconds. अपनी गर्जना से आकाश के सन्नाटे को चीरता हुआ जैसे विश्व की सारी मानवता के नाम भारत का ये शांति दूत एक ही संदेश सुनाता हुआ कि सफलता के आसमान असीमित। +40 seconds. 320 टन भारी 44.4 मीटर ऊंचे प्रक्षेपण यान की ये 39वीं उड़ान, जिसमें 16वीं उड़ान है इस विस्तृत संवर्धित संस्करण। +55 seconds. Now all the 6 strap-ons functioning, and the atmosphere is successfully been negotiated. In about 10 seconds from now, we will see the first set of 4 ground-lit strap-ons separated. जी हाँ, जो ठोस कोर चरण होता है वो जमीन पर ही प्रक्षेपण के 3 सेकंड पूर्व प्रज्वलित हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल विलगाव हो चुका है जो स्ट्रैप-ऑन्स हैं उनका, और धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे कि यान अपने गंतव्य तक बिल्कुल
फॉलो करता हुआ उसके अनुमानित पथ को अवलोकित पथ द्वारा Plus 1 minute 30 seconds. 1 मिनट 30 Trivandrum सेकंड का acquired the समय signal. व्यतीत हो चुका है। Airlit strap-on The separated. remaining two strap-ons also are separated. Now the first stage is functioning on its own, alone, and we have steadily gaining altitude. Now the relative velocity is 2 kilometers per second, and in about 5 to 10 seconds, the first stage will complete its task, burn First out stage and separate. separated. Second stage जी हाँ, engine आप started. स्क्रीन पर पोंगिनान जी को देख पा रहे होंगे। ये Plus हम 2 minutes. घोषणा करते हैं कि कौन सा स्टेज जो है वो सफलतापूर्वक अलग हो चुका है। इस समय हम द्वितीय चरण के इग्निशन के बाद की कहानी आप तक पहुंचा रहे Second हैं। stage द्वितीय चरण performance normal. प्रज्वलन के दौरान लगभग 158.3 सेकंड के बाद ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अपनी जो ऊष्मीय सुरक्षा कवच है या जिसे पेलोड फेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है वो अलग होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी होती है वो। अभी तक जो निष्पादन है वो बिल्कुल सामान्य है। यान 2 minutes, अपने 30 गंतव्य seconds. तक जाता हुआ। इस समय करीब 2 मिनट 35 सेकंड की यात्रा पूरी कर चुका PSLV C-37। Heat shields separated. जी हाँ, ऊष्मीय सुरक्षा कवच अलग हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है जब ये सुरक्षा कवच अलग होता है। ये करीब 134 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद होता है जो इस यान को ऊपर ले जाएगा। The second stage Plus 3 minutes. is under Second stage operation. performance This normal. is a liquid stage built by ISRO and uses primarily unsymmetric dimethyl hydrazine as fuel. It's a very efficient stage with a specific impulse of as high as 295 seconds, and it will be burning for a total duration of 150 seconds. It will be some time before we separate this stage, and the performance till now has been perfectly normal. On your screen, all the mission experts of ISRO having a close watch on the launch, everything as per plan, and you can see, or you'll be shown shortly, the flight is following the pre-flight. Now it's on the screen. The pre-flight predictions are in red color, and the green color is the instantaneous position of the Plus 4 vehicle, minutes. and you can see the position is one over another. जी हाँ, करीब 200 किलोमीटर की ऊंचाई पहुंच चुके हैं और जो परास है वो 370 किलोमीटर का हो चुका है। इस समय हम 250 सेकंड का जो समय है व्यतीत कर चुके हैं। बहुत ही नजदीक जब तीसरा चरण प्रज्वलन शुरू होगा। हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बताते चलें कि 4 चरणों वाले PSLV में उल्टी गिनती के ही दौरान यान के दूसरे और चौथे चरण में तरल ईंधन भरा जाना था। बिल्कुल करीबी घोषणा कि PSL जो तृतीय चरण था वो इग्नाइट हो चुका है, प्रज्वलित हो चुका है और दूसरा चरण जो है वो सामान्य निष्पादन करते हुए अलग। तो मैं आपको बता रहा था कि दूसरे और चौथे चरण में तरल ईंधन भरा जाता है। इसी दौरान प्रथम चरण के जो RCT होते हैं उनमें भी ईंधन के रूप में MMH मोनोमिथाइल हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिश्रण अर्थात MON3 भरा जाता है। इस समय करीब 5 मिनट का समय बीत चुका है। तृतीय चरण अपने निष्पादन को समर्पित करते हुए लगातार गंतव्य तक आगे बढ़ता आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तरफ रेंज और एल्टीट्यूड मतलब परास और ऊंचाई की तुलना, अनुमानित पथ जो है उसी को फॉलो करता होगा अवलोकित पथ, और दूसरी तरफ आप दाएं तरफ देख पा रहे हैं ग्राउंड ट्रेस, माने किस तरह से श्रीहरिकोटा से आगे बढ़ता हुआ जो लॉन्जिट्यूड है उस तरफ बढ़ता हुआ हमारा यान। How you are seeing this information is now, I'll tell you next. We use a network of ground stations for tracking telemetry and telecommand activities related to this mission. The health and trajectory parameters of PSLV C-37 is available to these ground stations via the antenna mounted on the rocket along with the required subsystems. This information is sent to Sriharikota ground station in real time, and we shall be showing you this information, or rather we are showing you this information on the real-time display screens. The entire ascent mission of C-34 till orbit is tracked by ground stations at Sriharikota, Thiruvananthapuram, and Mauritius. Cartosat 2, INSAT 1A, INSAT 1B, sorry, INS 1A, INS 1B,
and a few nanosatellites Third separation stage will be visible action from completed Mauritius. vehicle in However, coasting the most of the nanosatellite separations will occur after we have the Mauritius ground station loses the vehicle, that is the vehicle is out of the sight from Mauritius ground station, and hence we will be recording the separation data on board, and when around 500 seconds later Troll ground station in Antarctica will acquire the vehicle, then all the things will be again shown to you. So we will confirm to you the separations of 72 Plus 7 of the minutes. 101 nanos in during this period, and again last 20 separations will coasting be normal. visible from Troll, which will be shown to you in real time. जी हाँ, कोस्टिंग बहुत छोटी, जैसे रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर पुंगनान जी बता रहे थे। तृतीय चरण प्रमुचन के 264 सेकंड के बाद है, ये यूं कहें कि दूसरे चरण के पृथक्करण से 1.2 सेकंड के पश्चात तीसरा चरण प्रज्वलित हो गया, तो जो 227.6 सेकंड का ज्वलन यान को देकर यान को एक अभीष्ट ऊंचाई दे देता है। अब हम बहुत ही करीब तृतीय चरण के प्रज्वलन के बंद होने की प्रतीक्षा में और चतुर्थ चरण के जो प्रज्वलन के लिए, तृतीय चरण के प्रज्वलन के पश्चात और अंतिम चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के पूर्व निशक्ति समय लगभग 116.6 सेकंड का है इस अभियान में। और आप देख पा रहे हैं कि ये कोस्टिंग पीरियड से गुजरता हुआ यान इस समय बहुत ही नजदीक उस घड़ी के जब चतुर्थ चरण प्रज्वलित होगा। तृतीय चरण बंद हो चुका है इंजन और कोस्टिंग पीरियड निशक्ति काल चल रहा है। करीब करीब 8 मिनट 10 सेकंड का समय बीत चुका है। हम बहुत ही करीब उस क्षण के जब चतुर्थ चरण प्रज्वलित किया जाएगा। उड़ान अनुक्रम का निर्धारण जी हाँ, जो तृतीय चरण है वो अलग हो चुका है अपना निष्पादन देते हुए सामान्य रूप से, और अब चतुर्थ चरण भी प्रज्वलन शुरू कर चुका है। तो अभी तक सारे चरणों ने अपना अभीष्ट निष्पादन यान को दिया। The nominal performance till now of the vehicle is very heartening for us, and now as you can see the fourth stage is performing. It's the twin engines of the fourth stage are firing at their peak level at normal steady level. 9 minutes. And just now you have heard that the performance of the fourth stage is nominal. On the screen, senior directors of ISRO intently observing the launch, and as we coast. अभय जी, मैं सॉरी चाहूँगा आपसे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारे केंद्रों के निदेशक महोदय हैं। कितना कॉन्फिडेंस, कितनी निश्चिंतता है इस यान के बारे में, GSLV के और PSLV के प्रोग्राम डायरेक्टर्स। जी हाँ, yes, Dr. Alok, you are right. After 37 successful flights, the experience really shows, but at the same time you will see that the commitment visible is as if this is the first launch. Every launch for us becomes so important, and our senior directors and senior scientists show the same level of commitment as if it's an early stage of a rocket development launch. बिल्कुल सही कहा अभय कुमार जी आपने। होता दरअसल ये है कि कोई भी इस तरह के स्पेस मिशंस जो होते हैं, कितना भी कुशल वैज्ञानिक क्यों ना हो, लेकिन अनिश्चितता कहीं भी बरकरार रह जाती है। तो निश्चित रूप से घड़ी किसी के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक निश्चितता जो आ जाती है इतने लंबे अभियानों के बाद, वो चेहरे पे झलकती है। हमारे जो विदेश के उपभोक्ता हैं वो आप स्क्रीन पे अपने देख पा रहे होंगे, कुछ अमेरिका के, कुछ स्विट्जरलैंड के और नीदरलैंड के। इस तरीके से विभिन्न उपभोक्ता जो हैं हमारे साथ, NRSC के निदेशक महोदय और शार सेंटर के पूर्व निदेशक, और ये पोंगिनान जी हैं जो रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर हैं। इस समय आपके स्क्रीन पर उड़ान अनुक्रम का जो निर्धारण होता है प्राथमिक रूप से अभियान आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, ताकि लक्ष्य की स्थितियों को इष्टतम रूप से प्राप्त किया जा सके। उड़ान के इस निशक्ति समय के दौरान जब तृतीय या चतुर्थ हुआ था, तब रॉकेट मोटरों को बंद कर दिया जाता है, ताकि निशक्ति समय के अंतिम क्षणों में चतुर्थ चरण जब अलग होता है, तब उस समय किसी भी तरह की आशंका से मुक्ति पाई जा सके। तो इस समय हम जो अपना शार सेंटर है उसकी विजिबिलिटी के बिल्कुल
सीमा के अंदर हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे परास क्षेत्र से निकल के जब हम हमारा यान चतुर्थ चरण से संपन्न हो जाएगा तब हम त्रिवेंद्रम पहुंचेंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम जब त्रिवेंद्रम से बाहर निकलेंगे तब मॉरिशस तक आएंगे। लेकिन तब तक भी सारे उपग्रहों का जो पृथक्करण वो संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने उनके पृथक्करणों को रिकॉर्ड कर लेंगे यान में। और जब हमारा ट्रॉल जो ग्राउंड स्टेशन है वो दिखाई पड़ेगा, उसकी सीमा के अंतर आएंगे, तब हम आपको एक साथ करीब करीब 76 से 80 उपग्रहों के पृथक्करण को दर्शाएंगे। Performance till now on dot, totally nominal performance by PSLV 37. And one interesting thing I would like to share with all of you is, today we are having 111 separation events, and in this 111 separation events, we will separate 115 bodies from the PSLV. Fourth stage performance. The strap-ons are separated in sensible atmosphere. They have already been separated using a set of springs. The heat shield halves have been separated using a linear bellows system, pressure-based system. The moment band bolt cutter mechanism was used to separate the second stage. The third stage was separated using ball release type mechanism and jetation using springs. Now all the spacecrafts will be separated using springs. By a very careful and elaborate analysis, a safe separation meeting all mission requirements is ensured. Our chairman, Shri A.S. Kiran Kumar, watching the launch with intent, every parameter is in his eyes and in his mind. जी हाँ, करीब करीब 13 मिनट का समय बीत चुका है। हम चतुर्थ चरण के प्रज्वलन से गुजर रहे हैं। कार्टोसैट 2D को 505 ±5 किलोमीटर की वृत्तीय सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा, जो भूमध्य रेखीय समतल के सापेक्ष में 98.1 किलोमीटर झुकी होगी। श्री तपन मिश्रा जी, जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक भी हैं, जो उपग्रह में प्रदाय भार लगा होता है, जो 2 कैमरे लगे हैं, पैनक्रोमेटिक कैमरा और मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा, इस तरह के प्रदाय भारों की अभिकल्पना, निर्माण, ये सभी कुछ सैक में होता है और उसके बाद उसे स्थानांतरित कर दिया जाता है इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में, जहां उपग्रह का निर्माण किया जाता है। तो उपग्रह से संकेत मिलते ही कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित स्ट्रैक भू केंद्र उपग्रह को अपने नियंत्रण में ले लेगा। उपग्रह की अभिकल्पित कालावधि लगभग 5 वर्ष की होगी। इस समय हम करीब 3634 किलोमीटर दूर हैं श्रीहरिकोटा से और ऊंचाई करीब 518 किलोमीटर की पहुंच चुकी है। Another 170 seconds to go before we reach the orbit. And an interesting fact about this mission is that once all the 104 satellites are injected, they are in a very similar yet slightly different orbit due to the small separation velocities given. Also, during the passivation process of the last stage, RCS thrusters are fired to maintain the attitude, and they also give a small additional velocity to PS4. Taking care of individual satellite velocities and PS4 velocity changes, as I've told you, the orbits of these bodies are propagated for a few days, and positive gap between them is ensured by suitably adjusting both the sequence of separation as well as the orientation change required in the fourth stage. Hence, this process brings out the sequence of operations to perform for the separation of the multiple satellite separation in the mission. जी हाँ, इस समय आप अपने स्क्रीन पर फ्लाइट पैरामीटर्स को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। एक्चुअली जिस तरीके से भारत के सुदूर दक्षिण से जब श्रीहरिकोटा से उपग्रह को हम आगे बढ़ाते हैं यान के साथ में, तब धीरे धीरे किस तरीके से परिवर्तन होता है लॉन्जिट्यूड में, वो आप देख पा रहे होंगे। बड़े खुशी के जो क्षण है वो इसरो के चेयरमैन के चेहरे पे आप बाकायदा देख पा रहे होंगे। वैसे एक बात और जो प्रमोशन के होने या न होने से जुड़ी हुई होती है, वो है अंतरिक्ष वस्तु निकटता विश्लेषण, इम्पैक्ट एनालिसिस। इस विश्लेषण का आधार है संकट या टकराहट का खतरा। कक्षा में पहुंचने के बाद किसी भी पूर्व विद्यमान वस्तु यान के अंतिम चरण या उपग्रह से टकराने की संभावना का अनुमान लगाना इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य। श्री A.S. किरण कुमार जी,
जो बहुत ही निकटता से हर उन आंकड़ों को देखते हुए और उनके साथ दोनों तरफ विभिन्न केंद्रों के निदेशक मौजूद हैं। इस समय हम बहुत ही नजदीक से उन अवलोकनों का, उन घड़ियों की प्रतीक्षा करते हुए जो इस यान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर की उद्घोषणा कुछ ही क्षणों में। PS4 engine has been shut off. Engine shut off. Injection conditions normal. So the orbit has been achieved. We are at 509 kilometer altitude. Orbit of 505 plus 17 by minutes. 505 is achieved. Inclination has been achieved, 97.47. And in about 20 seconds from now, we will be injecting the Cartosat 2 satellite series into the orbit. जी हाँ, अब हम चतुर्थ चरण के इंजन के बंद होने के बाद उस घड़ी की प्रतीक्षा, जब कार्टोसैट 2D जो यान से अलग होगा, पृथक्करण होगा, उसके बाद IRNS 1A और 1B अलग होंगे और उसके बाद जो शेष नैनो उपग्रह हैं एक के बाद। ये बिल्कुल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कार्टोसैट अलग हो गया है 10:45 सेकंड के पश्चात। उसके बाद INS 1A और 1B भी अलग है। तो मैं तो अपनी स्क्रीन पर बाकायदा देख पा रहा हूँ क्योंकि उसमें कैमरे लगे हुए हैं। बिल्कुल सफलतापूर्वक दिखाते हुए, काश मैं अपनी आंखों से आपको ये समाचार दिखा पाता, ये घड़ियां दिखा पाता। The main satellite Cartosat 2 and the 2 nano satellites of ISRO are ejected. Plus 18 We have minutes. seen on the monitor through video cameras the ejection, and now in a short while the sequence of 101 satellites separating from PS4 will be initiated. लेकिन अभय कुमार जी, एक चीज और होगी कि बहुत ही जल्दी हम अपने जो यान है, या अपना जो त्रिवेंद्रम है, उससे और मॉरिशस से हम अपना जो देखने का वो नजरिया वो बदल लेंगे, क्योंकि इस समय हम अलग हो जाएंगे, यान से दूर हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, that's true. And now you can see the nano satellite separations have started. The 4 quad packs of the nano satellites, 4 pairs of nano satellites are separated. Now what is happening is that the vehicle telemetry and the contact with Mauritius ground station, that is lost. Mauritius ground station has, there has been a loss of signal because plus 19 minutes will be the confirmed track of the after vehicle data has crossed reception the Mauritius range, and Trawl about station for 6 minutes expected we will be after T plus 26 minutes, that is 7 minutes from now. Please stand by. So as range operation director has informed you already, about 6 minutes there will be no signal from the vehicle. What is happening is that we are now undergoing all this nano satellite separation in pairs. Totally 40 pairs, 80 number of satellites are getting separated. 8 of them you have already seen, in fact, on your screens. The remaining 72 satellite separation data is getting recorded on board the vehicle systems, and when around 500 seconds later, from now, plus 20 minutes. When the Trawl station in Antarctica will acquire our PS4, that is the PSLV vehicle, then this 72 satellites data, separation data, will be transmitted to Sriharikota, and we will show you that information. Subsequently, another 20 satellites will be separated during the visibility of Trawl, and thus ending the ejection of all 101 nanosatellites from our esteemed customers. जी हाँ, जैसा कि रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने और बाद में हमारे साथी कमेंटेटर ने बताया आपको कि जो 101 उपग्रह हैं उसमें से कुछ उपग्रहों को, 4 पेयर जो थे उनकी नैनो उपग्रहों को, उसको हमने प्रक्षेपित कर दिया है और वो दिखा रहा है, और बाकी उपग्रह भी यान से लगातार प्रक्षेपित होते जा रहे हैं, लेकिन यान से मिलने वाला संकेत हमारे किसी भी भूकेंद्र पे रिसीव नहीं हो रहा है, प्राप्त नहीं हो रहा है। इसे हम लॉस ऑफ सिग्नल कहते हैं। लेकिन यान सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है और इन सारी गतिविधियों को हम यान में ही लगे हुए रिकॉर्ड
रिकॉर्डर द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ही हमारा यान ट्रॉल भूकेंद्र की सीमा में आएगा, वो सारा डाउनलोड किया हुआ डेटा हम आप तक तुरंत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस समय हम आपको कुछ घटनाओं के बारे में बताना चाहेंगे। ये जो आप स्क्रीन पर अपने दर्शक दीर्घा को देख पा रहे हैं, ये हमारे विदेशी उपभोक्ता हैं जो अलग अलग देशों से हैं। जैसे प्यास उपग्रह जो द नीदरलैंड के वैज्ञानिक हैं उनका है, और स्विट्जरलैंड के डायडोर 2 जिनका 4.2 किलोग्राम भारी उपग्रह है, जो बेसिकली जो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च होती है उसमें काम आएगा। इसरो के विभिन्न वैज्ञानिक जो आप देख रहे हैं, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के निदेशक श्री राकेश कुमार जी और राकेश कुमार जी को, और उसी तरीके से आप जो विशिष्ट जो हमारी दर्शक दीर्घा है उसमें श्री सुरेश कुमार जी को देख पा रहे होंगे। इस समय जो रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर हैं वो हमें अपडेट करेंगे जैसे ही हमें सिग्नल प्राप्त होगा ट्रॉल में अंटार्कटिका के पास। इजराइल का बीजीयूसैट और अल फराबी जो है वो 1.7 किलोग्राम भारी कजाकिस्तान का। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि कार्टोसैट 2D जो जानना है अगर आपको इसके बारे में, तो आपको अतीत की परतों में छुप गए बीते समय के उन 4 उपग्रहों को भी जानना होगा जिनके अभिकल्पना की परिणति है ये नया उपग्रह। 5 मई 2005 का वो दिन मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब PSLV C6 से हैमसेट के साथ इसे छोड़ा गया था। तब इसका भार 1560 किलोग्राम था। ये जो हमारे कुछ दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं, ये कुछ उनके परिवार के लोग भी बड़ी उत्सुकता से इस घड़ी के साक्षी बनते हुए। उसके बाद बारी आई कार्टोसैट 2A की, जो 28 अप्रैल 2008 को PSLV C9 से 635 किलोमीटर की कक्षा में उसे छोड़ा गया था। और उसके बाद कार्टोसैट 2B को 12 जुलाई 2010 को PSLV C15 से छोड़ा गया था। उसके बाद कार्टोसैट 2C को इसी विगत वर्ष 22 जून 2016 को PSLV C34 से 505 किलोमीटर की ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया था। दरअसल इन सारे उपग्रहों को अगर मैं एक नाम दूं कि ये समूचा यान जो है वो विभिन्न तरह के सुदूर संवेदी उपग्रह अपने साथ लेके गया है 104, तो अति संयोक्ति नहीं होगी, जिसमें से 3 हमारे स्वदेशी हैं, 101 विदेशी उपग्रह हैं। अच्छा, इनका उपयोग अगर हम बात करें आपसे, तो इससे समूचे विश्व की कार्टोग्राफिक जरूरतों जैसे त्रिविमीय प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले मानचित्रीय अनुप्रयोगों हेतु इस उपग्रह का उपयोग किया जाता था। इसमें लगे कैमरे का विभेदन 2.5 मीटर था, जिससे हम अंतरिक्ष की ऊंचाई से जमीन पर दौड़ रही छोटी किसी कार को भी पहचान सकते थे। ये तब की बात है जब PSLV 6 से हमने कार्टोसैट 1 का प्रक्षेपण किया था। लेकिन अगर हम आज कार्टोसैट 2D की बात करें तो हमें जो विभेदन प्राप्त हुआ है वो करीब 0.64 किलोमीटर का है, जो पैनक्रोमेटिक कैमरा का है, और करीब 2 किलोमीटर जो है वो मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा का है। लेकिन इससे भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे जानकारी शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि कार्टोसैट उपग्रह में कंपोजिट स्ट्रक्चर जो था वो पूर्णतः स्वदेशी था, जो पहले से हमने जर्मनी से बनवाया था, लेकिन आयातित किया था। लेकिन उसके बाद कार्टोसैट 2D में हमने जो कंपोजिट स्ट्रक्चर तैयार किया है वो स्वदेशी है, और इसमें जो प्रदाय भार के रूप में लगे हैं वो पैनक्रोमेटिक कैमरा है, मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा है जो TDI या टाइम डिले इंटीग्रेशन मोड में कार्यान्वित होगा, तथा 2 इवेंट मॉनिटरिंग कैमरे लगे हुए हैं ताकि पूर्व नियोजित स्थल का वीडियो प्रतिबिंबन भी प्राप्त किया जा सके। अच्छा, आपकी राह पे चलते हुए ये जो कार्टोसैट 2D उपग्रह है वो 0.26 डिग्री आगे पीछे या दाएं बाएं भी देख सकता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण उपग्रह है जो सुदूर संवेदी के काम आएगा, जिसमें हम विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए, जिसमें भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS या LIS जो सूचना प्रणाली है, भूमि एवं सूचना प्रणाली, इसे हम इसके रूप में यूज कर पाएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो समाज में विभिन्न दायरों को, निश्चित रूप से विभिन्न तबकों को स्पर्श करेगा। Another about 2 to 2.5 minutes before the troll station acquires our PSLV, and a little details on the nano satellites which are undergoing separation right now.
The Flock 3P, totaling 82 Dove satellites, is a fleet of remote sensing satellites that will image the entire Earth every day for commercial, environmental, and humanitarian purposes. The Dove satellites are designed, built and operated by Planet Incorporated headquarters in San Francisco. These satellites are being launched as a part of Planet's Flock constellation. These 88 satellites will be housed inside 22 quad-pack dispensers. Each Dove satellite weighs around 4.7 kilograms, and the total mass of 88 satellites along with the quad-pack dispensers is 569 kg. You can, we are able to see on screen from our monitors a nominal track of the vehicle closely approaching towards Antarctica, where it will be acquired by Troll. Next, we have 8 numbers of Lemur satellites assembled in 2 quad packs. Each Lemur is 4.6 kilograms, belonging to Sapphire Globe Incorporated, San Francisco, USA. The mission objective of Lemur satellite is to provide vessel tracking using automatic identification system. In addition, it will carry weather measurements using GPS radio occultation. The total mass of 8 Lemur satellites with quad pack is 52 kilograms. We have 5 more satellites in a single quad pack. PEASS or PACE satellite weighs around 3 kilograms and is built by European Consortium of partners owned by Innovative Solutions in Space, BV, the Netherlands. It's a technology demonstrator nanosatellite. The Dido-2 is a 4.2 kilogram nanosatellite built by company Space Pharma from Switzerland. Its objective is microgravity research. 28 minutes. The BGU-SAT is a 4.3 kilogram nanosatellite built by Israeli Aerospace Industries in cooperation with Ben Gurion University, Israel. The Al-Farabi-1 weighs 1.7 kilogram and is built by Al-Farabi Kazakh National University in Kazakhstan and is a technology demonstrator nanosatellite. Finally, the Naif-1 is a 1.1 kilogram technology demonstrator built by Emirati students from the American University of Sharjah in partnership with Mohammed bin Rashid Space Center, Dubai. Both Al-Farabi-1 and Naif-1 are occupying a single 3U slot in the quad pack. We are very close to the injection now, and we will see from at any moment now, the Troll will be acquiring PS4 and giving us the information on the nanosatellite separations. जी हाँ, दर्शक दीर्घा जो आपके स्क्रीन पर एक युग था जब हम विदेशों में जाया करते थे अपने प्रक्षेपण के लिए, तब हम इसरो के वैज्ञानिक उपभोक्ता की कुर्सियों पर बैठा करते थे, और आज वो दिन है जब हमारे यान विदेश के कई उपभोक्ताओं को अपने यहाँ स्थान देते हैं. ये फ्लाइट पैरामीटर्स PSLV-C 37 के जो आप देख पा रहे होंगे, 10,000 किलोमीटर की जो रेंज है उसे हम प्राप्त कर चुके हैं, और हम किसी भी क्षण ट्रॉल जो हमारा भूकेंद्र है उसकी परास में आ जाएंगे, और उसके आने के बाद हमें उन सभी पृथक्करणों को जो नैनो उपग्रह पृथक हुए हैं उनकी एक साथ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. और हमारे रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर लगातार संपर्क बनाए हुए भूकेंद्र से बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते हुए कि किस समय यान जो है वो उसकी परास में आए, और निश्चित रूप से उस समय हम आपको पृथक्करण की जानकारी देंगे. वैसे निश्चितता सबके सभी के चेहरों पर. बहुचरण आधारित यान के विभिन्न चरणों को उनके उपयोग हो जाने के बाद मुख्य यान से अलग कर दिया जाता है. इस पृथक्करण के लिए आवश्यक है कि वो सुरक्षित हो और संघट मुक्त भी हो, इम्पैक्ट फ्री हो. ये पृथक्करण घटनाएं यान के लिए बेहद नाजुक होती हैं, इसलिए उनकी अभिकल्पना पर सबसे ज्यादा ध्यान देकर इन्हें साफ सुथरा, संतुलित व सख्त बनाया जाता है. PSLV-C 37 में यान से जुड़ी हुई इस तरह की 6 पृथक्करण घटनाएं हैं, लेकिन उसके बाद जब अनेक उपग्रह आते हैं तो करीब करीब बाबा जी 101 ऐसी प्रणालियां और 101 प्रणालियां और भी हैं. हमारे साथी वैज्ञानिक अभय कुमार जी लगातार इस तरह की अभिकल्पनाओं से VSSC में जुड़े हुए हैं, इसलिए वो हमसे ज्यादा जानकारी बता पाते हैं. मैं इस समय आपको केवल ये बता दूं कि हम बड़ी बेसब्री से इस घड़ी का प्रतीक्षा कर रहे हैं जब यान अलग होगा. सभी के चेहरों पर बेहद खुशी इस समय. तो मैं अनुमान लगा पा रहा हूं कि शायद हमें संकेत प्राप्त हो चुका है. जी हाँ, आप स्क्रीन पे सभी 104 उपग्रहों के सफलतापूर्वक पृथक्करण की
घटना को देख पा रहे हैं, बेहद खुशी का मौका, विश्व कीर्तिमान भारत के नाम। Yes, all the 104 satellites ejected, and it is a Separation world of all record in terms of 104 satellites communicating confirmed. satellites launched in a single launch I by any repeat, country. separation of all 104 satellites confirmed. Now the mission has been accomplished successfully, and shortly you will hear our chairman Shri A.S. Kiran Kumar